کراچی کی جانب جا رہی ہے. جو کراچی سے آنے والی لاہور کو جانے والی روڈ ہے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. دوسری سائڈ والی جو روڈ ہے وہ اسے چھوٹی گاڑیوں کے لیے جو ہے وہ رواں دواں رکھا گیا ہے. اب امید یہی کی جا سکتی ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے میں یہ جو آپریشن ہے یہاں پر یہ مکمل کر لیا جائے گا اور جو لوگوں کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ پڑی ہیں انہیں یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا کسی ہاسپٹل میں, اور جائے وقوع جو ہے وہ اسے صاف کر کے جو ٹریفک ہے اس کے روانی کے لیے کھول دی جائے گی. کتنا وقت لگے گا اس میں عمران؟ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اتنی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں, روڈ کے اوپر ٹرک جو ہے وہ بھی الٹا ہوا ہے, موٹر سائیکل بھی ہیں. میرے خیال سے اس کو آپریشن کو مکمل کرنے میں اور کچھ نہیں تو 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ ضرور لگیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹینکر کو ہٹا کے اور جو موٹر سائیکل اور گاڑیاں اس آگ کی لپیٹ میں آئی ہیں ٹریفک کا جو نظام ہے جو روانی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. یقیناً یہ بھی بہت ضروری کام ہوگا اس لیے کہ بالکل عید میں تقریباً ایک ہی دن ہے اور ممکنہ طور پر کل ہی عید ہو جائے گی, اور ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ مختلف شہروں کو جا رہے ہوتے ہیں, اپنے آبائی علاقوں کی جانب جاتے ہیں, اور ایسے میں اگر ٹریفک کی روانی متاثر ہو جائے تو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یقیناً عید سے ایک روز پہلے یہ اتنا بڑا حادثہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں یاد ہے کہ کچھ برس پہلے کراچی میں اتنے لوگ عید والے دن ڈوب مر گئے تھے, اور آج یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ بھی نہیں بھولا ہے کہ جب بڑی عید پر سانحہ منی پیش آیا تھا اور وہاں پر بھی بڑی تعداد میں حاجی جاں بحق ہو گئے تھے. بہرحال یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ خوشی کے موقع سے پہلے افسوسناک اتنا بڑا جانی حادثہ پیش آیا ہے, اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سہولیات ناکافی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہی جانی نقصان زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. عمران یہ بتائیے کہ اب یہاں پر اس بات کو کنفرم کر دیا گیا کہ کوئی باڈی موجود نہیں ہے, کوئی زخمی موجود نہیں ہے, یا ابھی بھی یہاں پر ریسکیو کا کام جاری ہے؟ ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ یہاں پر کیسے لوگوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ایمبولینسز تو بہت زیادہ نہیں یہاں پر پہنچ پائی ہوں گی. جی دیکھیں, جو جائے وقوع ہے وہاں سے زخمیوں کو جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے. جو لوگ جھلس چکے ہیں, جن کی سانسیں ان کی باڈیز کے اندر نہیں رہی اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے, کہیں منتقل جو ہے ابھی تک جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کافی بڑی تعداد میں یہاں پر جو لوگ جلس کر جاں بحق ہوئے ہیں, جل کر جاں بحق ہوئے ہیں, جائے وقوع پر ان کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں. زخمیوں کو منتقل کیا گیا تھا قریبی ہاسپٹل, تحصیل ہاسپٹل میں شرکیہ میں, اور کچھ لوگوں کو شاید CMH میں بھی ہمیں ذرائع بتاتے ہیں منتقل کیا گیا تھا. لیکن جو تحصیل ہیڈ کوارٹر لائے گئے تھے ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. ایسے جو چند ایسے لوگ تھے جو کچھ کم مائنر جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے اس واقعے کے اندر, اور انہیں جو ہے وہ ابتدائی طبی جو امداد تھی وہ فراہم کی گئی, جو ان کے پاس سہولیات موجود تھی, اور انہیں وہاں سے ڈسچارج کیا گیا ہے. لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی ہے جو کچھ اندازہ لگا پائی ہے انتظامیہ عمران کہ کتنے لوگ زخمی ہیں؟ کیونکہ 100 افراد کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جو جاں بحق ہوئے ہیں. زخمی کتنے ہیں؟ 120 تو وکٹوریا اسپتال میں موجود ہیں زخمی. جی, جو ہم نے یہاں سے معلوم کیا ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں جو یہاں سے انہوں نے ریفر کیے ہیں تقریباً 64 سے زیادہ لوگوں کی جو فہرست ہے وہ ہمیں انہوں نے ابتدائی طور پر فراہم کی ہے کہ 64 ایسے لوگ ہیں جنہیں بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل منتقل کیا ہے. اور مزید جو ہے اس حوالے سے جو فہرست ہے وہ جو ڈیٹیلز ہیں, جو تفصیلات ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں, لوگوں کے نام اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تو اب 64 جو ہے وہ ہمیں جو بتایا ہے ریسکیو ذرائع نے وہ یہاں سے BVH جو ہے وہ منتقل کیے گئے. اچھا عمران, اسپاٹ پر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پولیس یہاں پر کیا پہنچی ہے؟ یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یا صرف ریسکیو اہلکار دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بالکل, قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی یہاں پر موجود ہیں, سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں محکمہ پولیس کے وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, انتظامیہ پہنچی ہوئی ہے, ریسکیو 112 کے لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو موٹر وے پولیس ہے اس کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام جو واقعہ ہوا ہے اس کو سمیٹا جائے اور جو ٹریفک کی روانی ہے اس کو بحال کیا جائے, اور جو لوگ اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کو اکٹھا کیا جائے اور جو ایگزیکٹ فگر ہیں ان کو جو ہے وہ مرتب کیا جائے. کیونکہ یہاں پر ایسی بھی صورتحال ہے کہ جو لوگ جلس کر جاں بحق ہوئے ہیں ان کے صرف بونز یہاں پر ہڈیاں موجود ہیں. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص کی ہیں یہ 2 شخص کی ہیں, یہ بھی اس طرح کی بھی صورتحال ہے. تو یہ جو شواہد ہیں اور جو زیادہ مشکل صورتحال ہوگی نا عمران, پھر تو شناخت کرنا کا عمل بھی کافی زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا. DNA ٹیسٹ اور یہ سب معاملات بھی پھر دیکھنے پڑیں گے اگر باڈیز اس طرح سے آپس میں مکس ہو گئی ہیں.
जी बिल्कुल, काफी पेचीदा होगा शनाख्त का अमल, और जो लोग जिन लोगों की सिर्फ हड्डियां बची हैं शायद उनका डीएनए टेस्ट मुश्किल हो, लेकिन जो झुलस गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, उनका डीएनए जो है वो उनके जो लवाहिकीन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे करके जो है हो सकता है कि उनकी डेड बॉडीज उनको फराहम की जाए। लेकिन एक यहाँ पर ये चीज भी देखने में आई है कि जो जिन लोगों के प्यारे इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, वो अभी तक उनकी जो डेड बॉडीज है उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही, और शायद वहीं पे जाए वकूफ पर उनकी डेड बॉडीज कहीं पे मौजूद होगी, तो वो जो लवाहिकीन है, जो वुर्सा है, वो ज़ारो कितार यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर उनको उनकी जो है वो दादरसी करने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए जो है उन्हें वो यहाँ पर जो है वो अभी तक कोई अवामी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर जो है वो में अली हसन गिलानी जो कि मेंबर रुकने कौमी असम्बली है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने देखा है कि यहाँ पर सहूलियात का जायजा लिया है, लेकिन वो भी समझते हैं कि यहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हो सकेगा वो तमाम तर सहूलियात जो है वो जख्मियों को फराहम की जाएंगी। यहाँ से रवाना हुए हैं होने वाले अफराद में और जो बदकिस्मत जाँ बहक हुए हैं, इनमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं क्या? क्योंकि ज़ाहिर है आसपास जो बस्तियां हैं वहां से ये लोग भागे थे पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन उसी दौरान ये जद में आए, तो खवातीन भी शामिल हैं क्या इनमें? जी, इस बारे में हमने भी कुछ ज्यादा कुरीदा नहीं है, मतलब रेस्क्यू जराए से, लेकिन हमारे जो दूसरे नुमाइंदे हैं सोहेल चौधरी, वो आपको इस बारे में ज्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। लेकिन जो लोग हलाक हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 100 से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये एक एग्जैक्ट फिगर है कि 100 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और इसमें मजीद भी इजाफा हो सकता है, जबकि दर्जन जो लोग हैं वो जख्मी हैं। जैसे हमें अथर भावलपुर से हमें आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि तकरीबन 120 लोग वहां पर लाए गए हैं। तो ये जो तादाद है, जो लोग जाँ बहक हुए हैं इस वाक़े में, इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। अफसोसनाक ये सूरत हाल है। यकीनन इमरान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आपसे मजीद भी इस बारे में अपडेट्स हम लेते हैं। हमारे नुमाइंदे में आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त भी बड़ी तादाद में बॉडीज स्पॉट पर मौजूद हैं और वहां पर रेस्क्यू एहलकार अपना काम जारी रखे हुए हैं। कोशिश उनकी यही है कि फौरन इस सारी जगह को क्लियर किया जा सके ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो सके। लेकिन यकीनन ये बहुत ही अलमनाक हादसा है जो कि पेश आया है नेशनल हाईवे पर, और ये सूरत हाल बनी यूं कि एक ऑयल टैंकर जो यहाँ से गुजर रहा था अचानक उलट गया, जिसके बाद यहाँ से बहता पेट्रोल लेने के लिए लोग आसपास के इलाकों से इकट्ठे हो गए और अपने बर्तन लेकर वो आ गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ से जो ऑयल है उसको वो हासिल कर सकें। लेकिन इसी दौरान अचानक से आग भड़क उठी और उसके बाद ये तमाम बदकिस्मत लोग इस आग की जद में आ गए, जिसमें से अब 100 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद में जख्मी हैं जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, लेकिन ये बहुत ही एक छोटा सा अस्पताल है जहां पर सहूलियात का इंतहाई फुकदान है, जिसके बाद बड़ी तादाद में जख्मियों को रेफर कर दिया गया विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर। और यहां पर भी अगरचे बहुत ज्यादा इक्विप्ड ये अस्पताल नहीं है, लेकिन बहरहाल तहसील हेडक्वार्टर से सूरत हाल यहां पर बेहतर है। लेकिन फर्दर यहां से भी अब लोगों को मुल्तान शिफ्ट किया जा रहा है जो कि इसके जख्मी है। बहुत बड़ा यह हादसा है, बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए, इसलिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है फौरी तौर पर और अफसोसनाक सूरत हाल है। अतर फारूक एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद है बहावलपुर से, उनसे मजीद बात करते हैं। अतर, अब क्या सूरत हाल है विक्टोरिया अस्पताल की, क्या बताया जा रहा है? यहाँ से कुछ लोगों को मजीद अब मुल्तान शिफ्ट किया जा रहा है? जी, ट्राई की जा रही है। अभी तो फिलहाल इनको जो है सर्जिकल वार्ड में जो है शिफ्ट किया जा रहा है बीबीएच के, और यहाँ इनको थोड़ी देर ट्रीटमेंट दी जाएगी क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो है इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंसेज जो है अवेलेबल नहीं है। और इस वक्त क्योंकि निश्तर हॉस्पिटल में भी जो बर्न यूनिट है उसकी भी सूरत हाल का अंदाजा लिया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर जख्मियों को भेजा जाए तो क्या उनके पास उनको हैंडल करने की गुंजाइश है। तो इस तरह की अभी इस वक्त तो टेलीफोनिक राब्ते चल रहे हैं। इंतजामिया के कमिश्नर बहावलपुर जो है कमिश्नर मुल्तान से जो इस वक्त राब्ते में है और उनसे कन्वर्सेशन चल रही है। ताहम अभी इस वक्त जो जख्मी है इनको शोबा हादसा से सर्जिकल और मेडिकल वार्ड में जो है करीबी, क्योंकि इस वक्त जो है भावलपुर में मैं आपको बता रहा हूँ बीबीएच हॉस्पिटल में ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है। यहाँ पर मरीजों की अच्छी खासी तादाद होती है और आज 120 के करीब जो जख्मी लाए गए हैं इनकी इतनी अल्लाह माफ करे कंडीशन खराब है, क्रिटिकल कंडीशन है कि ये इनमें तकरीबन 120 में से अगर 100 मरीजों को आप ये कहें तो वो 80% अबव जो है 100 के करीब मरीज हैं जो यहाँ जख्मी लाए गए हैं। तो आप उसका शिद्दत का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में 100 मरीज जो 80% बर्न है उस हॉस्पिटल में, उस वार्ड में कि जहां बर्न यूनिट भी नहीं है और इस किस्म का ट्रीटमेंट इलाज मुआवजा के लिए ना उनके पास अद्वियात है, ना माहौल है, ना एयर कंडीशन है। बीबीएच हॉस्पिटल के मुताबिक जो वार्ड है असर दराज से उनके एयर कंडीशन भी खराब थे। और आपको पता है कि इस किस्म के जो जख्मी होते हैं उनको जो है पसीने से, गर्मी से बचाया जाता है
हब से बचाया जाता है, उनके लिए स्पेशल कूलिंग का अरेंज करना होता है, लेकिन जो कि DVH हॉस्पिटल में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और आफ्टर बर्न जो है ये पेशेंट जो होते हैं ये तकरीबन 12 से 20 घंटे के बाद इनके ऊपर बड़ा सीरियस किस्म का इन्फेक्शन होता है, जिसको बचाने के लिए स्पेशल बर्न यूनिट बनाए जाते हैं। अब वो चूंकि बहावलपुर में नहीं है, और जिस तरह से टाइम बढ़ता जा रहा है, जख्मियों को यहाँ बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में रखा हुआ है, इनको जब तक बर्न यूनिट में शिफ्ट नहीं करते तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन जख्मियों को मौत के मुंह में डाला जा रहा है। इस वक्त उनकी जान को शदीद खतरात लाक है और अमवात का फिगर जो है खौफनाक हद तक बढ़ सकता है। बहुत ही अफसोसनाक ये तो सूरत हाल है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80% से ज्यादा झुलसे हुए लोग हैं जो यहाँ पर लाए गए हैं, और इससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि खुदा न खासा जो हलाकतों की तादाद है वो बढ़ सकती है, क्योंकि आमतौर पर यही कहा जाता है कि अगर 70% या 80% जिस्म झुलस जाए तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है जानबर होना ऐसे मरीज का। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला करम फरमाए और कम से कम जो अफराद है उनकी मौत वाक़ई हो, क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि जो सहूलियात नाकाफी है जिस तरह से, उसमें इतने बड़े लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ट्रीट करना खासा मुश्किल है। तो अब फिर क्या किया जा रहा है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुल्तान शिफ्ट करने की बात हो रही थी, तो इस सिलसिले में हुकूमत ने कोई मुतहरिक हुई है, हुकूमत कोई स्पेशल इंतजाम किए गए उनकी जानिब से? इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई खातिर खा इमरजेंसी के इंतजाम नहीं किए गए। हालांकि ये इस वक्त ये जो सानिया है ये बहावलपुर से निकलकर एक कौमी सानिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है, कि जिसमें इतनी बड़ी जो है अमवात हुई है। और ये ईद के मौके पर महज एक दिन पहले सैकड़ों घरों में सफ़े मातम बिछा हुआ है। इस वक्त हुकूमत को तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर इनको रेस्क्यू के लिए कोई एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर का अरेंज किया जाता, या ऑर्डनरी जैसे लोथरा डिस्ट्रिक्ट है, मुल्तान है, कुर्ब जुवार के जो अजला है वहां से जो है बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस को यहाँ भेजा जाता और इन मरीजों को जो है प्रॉपर मुतलका हॉस्पिटल रवाना किया जाता। बदकिस्मती की बात यह है कि बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से जब हम इन मरीजों को शिफ्ट करने की बात करेंगे तो सबसे करीबी हॉस्पिटल जो है वो निश्तर हॉस्पिटल बनता है। उसके बाद दूसरा जो हॉस्पिटल आता है वो खारिया के करीब आता है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि बर्न यूनिट जो कि इन मरीजों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, वहां इन मरीजों को शिफ्ट करने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर खारिया जो कि इस्लामाबाद के करीब वाक़ है, तो इतनी दूर की मसाफत के लिए ये जो एम्बुलेंसेज है अगर इनको दे भी जाए तो नाकाफी है। यहाँ पर फिलफौर एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की जो है वो फिलफौर जरूरत है, ताकि ये जो जख्मी है इनको फौरी तौर पर प्रॉपर मुतलका बर्न यूनिट हॉस्पिटल में भेजा जाए, तो यूं जाकर कोई किस्म की ये जो अमवात है इसको रोका जा सकता है। अगर यहाँ हेलीकॉप्टर टाइप की कोई सहूलत ना दी गई तो जिस तरह का ये माहौल चल रहा है ये अमवात का तादाद खौफनाक हद तक बढ़ जाएगी, और ये मेरे ख्याल में इस साल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया साबित होगा। जी अदर आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अदर हमें बता रहे थे कि इस वक्त विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में क्या सूरत हाल है, और वहां पर भी इंतजाम तसल्ली बख्श हरगिज नहीं है, और उनका यही बताना है कि ना ही यहाँ पर प्रॉपर बर्न यूनिट है, और झुलसे हुए मरीजों को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वहाँ दूर दूर तक नाम निशान नहीं है उन सहूलियात का। और उसके साथ साथ अगर उन्हें शिफ्ट करने की भी बात की जाए तो फिलहाल इस सिलसिले में कोई खुसूसी हंगामी इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शिफ्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इंतजामिया के लिए। और जो यहाँ पर मनाजिर वो देख रहे हैं वो नाकाबिले बयान है, क्योंकि बड़ी तादाद में एक तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जख्मी हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जिस्म 80% से ज्यादा झुलस चुका है, और जिसकी वजह से उनका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। खदशा है कि अमवात में इजाफा हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये तादाद बहुत ज्यादा है जो कि 100 तक है, और इसके साथ साथ अब बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। पूरी कोशिश कर रही है इंतजामिया अस्पतालों की, डॉक्टर्स भी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को यहाँ पर वो ट्रीट कर सकें, लेकिन यकीनी तौर पर उनके पास भी महदूद वसाइल हैं, जिसकी वजह से वो भी अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम देने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। इमरजेंसी नाफिज की गई है, फौरन जो छुट्टी पर लोग मौजूद थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है, और इसके साथ साथ जो जितनी भी इंतजामिया कोशिश कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन बहरहाल उनके पास भी लिमिटेड वसाइल हैं जिसकी वजह से उन्हें भी
शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अफसोसनाक अलमनाक हादसा जो भी आप इसको कहें, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जान से गए हैं। आपने अक्सर सड़कों पर गुजरते हुए देखा होगा कि ऑयल टैंकर के पीछे खतरा लिखा होता है और यही कोशिश की जाती है कि अगर कोई ऑयल टैंकर सड़क पर गुजर रहा है, शहर के अंदर भी या बाहर भी, तो उससे दूर रहकर भी गुजरा जाए, क्योंकि किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है और उसकी कोई भी मामूली सी वजह भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एहतियात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा और एक ऑयल टैंकर जब उलट गया तो उसके बाद वो उनके लिए मौत का बायस बन गया। दहशत गर्द की तरह उसने बड़ी तादाद में लोगों को अपनी लपेट में ले लिया और अफसोसनाक सूरत हाल ने जन्म लिया, जिसमें 100 अफराद जाँ बहक हो गए और उसके बाद बड़ी तादाद में जख्मी हुए। इंतहाई ये अलमनाक हादसा है और इतनी बड़ी तादाद में अब लोगों को ट्रीट करना उससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका है। सुहेल अहमद एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर से, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। सुहेल, जैसा कि आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पर तो सहूलियात का बेहद फुकदान है और ज्यादातर लोगों को बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितने जख्मी मौजूद हैं अस्पताल के अंदर? इंतजामिया ने कोई फिगर दी है इस हवाले से? जी, इस टाइम 7 जख्मी मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया, जिसमें 4 बच्चे और 3 नौजवान हैं, जबकि 64 अफराद को बहावल विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया है। ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसीलों में शुमार होती है अहमदपुर शर्किया तहसील, लेकिन इस बड़े हॉस्पिटल में, तहसील के बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ 2 एम्बुलेंसें हैं और कोई बर्न सेंटर नहीं है, कोई खातिर खा डॉक्टरों का इंतजाम नहीं है। मेरे ख्याल में अगर एम्बुलेंस की तादाद ज्यादा होती और कोई खातिर खा इंतजामिया की तरफ से हॉस्पिटल में अरेंज होता तो अमवात में भी कमी आ सकती थी। बहरहाल इधर अब 7 अफराद जख्मी जो मौजूद हैं, बाकी 64 को BVH हॉस्पिटल बहावलपुर मुंतकिल कर दिया गया है और मौके तो लोग बुरी तरह झुलस चुके हैं, उन्हें भी 1122 वाले रेफर कर रहे हैं BVH बहावलपुर में। जी अच्छा सुहेल, यहाँ पर जो लोग लाए गए हैं उनका ताल्लुक किन इलाकों से बताया जा रहा है और फिर ये भी बताइएगा कि खवातीन भी लाई गई हैं क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। खवातीन की तादाद इतनी नहीं है, बस जो 7 बस्ती के लोग थे उनमें कुछ खवातीन जो वहाँ से पेट्रोल भरने घर के बर्तनों में आई थी वो थी, और बच्चों की तादाद काफी है, नौजवानों की, बुजुर्गों की। बच्चों की तादाद ज्यादा बताई जाती है। जी अफसोसनाक बात है, बच्चे बड़ी तादाद में झुलसे हैं। सुहेल, यहाँ पर कितने डेड बॉडीज मौजूद हैं, क्या कहते हैं अस्पताल इंतजामिया? जी, अहमदपुर हॉस्पिटल में तो सिर्फ इस टाइम 7 जख्मी मौजूद हैं, बाकी सबको बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और जो मौके पे झुलस गए थे बुरी तरह लोग, जो 64 के करीब है, मजीद भी बढ़ सकते हैं, उन्हें 1122 वाले बहावलपुर ही मुंतकिल कर रहे हैं, बहावल विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में। जी ठीक है सुहेल, आपने 7 बताई है तादाद, 7 या 60 बता रहे हैं आप? 7 7 ठीक है, यानी 7 अफराद ही सिर्फ जख्मी हालत में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बॉडी यहाँ पे कोई नहीं लाई गई है, जबकि ज्यादातर जो जख्मी है उन्हें विक्टोरिया अस्पताल ही मुंतकिल किया जा रहा है। तो सुहेल, इस वक्त यकीनन अफसोसनाक सूरत हाल है, इतना बड़ा हादसा पेश आया है, क्या माहौल है और आसपास के लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं? खास तौर पर कोई यहाँ पर पहुंचा इमदाद वगैरह के लिए? जी, सिर्फ PMLN नून के MNA मखदूम अली हसन गिलानी साहब हमें नजर आए थे मरीजों की देखभाल के लिए, और इंतजामिया से भी उन्होंने कहा था कि भी हर तरह की सहूलियत फराम करें। उसके अलावा शहर का माहौल पूरा माहौल सौगवार है, लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं, मार्केटें बंद कर दी हैं, और अस्पताल में लोगों की बड़ी तादाद हजारों के हिसाब से अस्पताल में पहुंची है लोगों की इमदाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो उनके झुलस चुके हैं, जो जख्मी हैं, उनकी इमदाद के लिए यहाँ पर आवाम बहुत आवाम इकट्ठी है। ठीक है सुहेल अहमद, आपका अभी तक के लिए शुक्रिया। आपसे मजीद भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। सुहेल अहमद अहमदपुर शर्किया से हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, चूंकि वो बिल्कुल ही बेबस है, वहाँ पर इतना अमला मौजूद नहीं है, इतनी सहूलियात मौजूद नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ट्रीट कर सकें। तो सिर्फ 7 जख्मी जिनकी नौयत भी बहुत ज्यादा जख्मों की नहीं थी उन्हें यहाँ पर रखा गया है और बाकी तमाम लोगों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर अब मजीद लोग भी नहीं लाए जा रहे हैं और ना ही यहाँ पर कोई बॉडी लाई गई है। बहरहाल यहाँ पर चूंकि हादसा बिल्कुल करीब ही पेश आया है तो इसलिए फजा सोगवार है और लोग इंतहाई परेशान हैं। ज्यादातर यहीं के मुतासरीन हैं जो कि इस हादसे की नजर हो गए हैं या फिर उसमें मुतासर हुए हैं और
इस वक्त यही वजह है कि लोग अपने प्यारों के लिए बहुत ही फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। कोई लापता हो गया है तो कोई जाँ बहक हो गया है और किसी का अभी तक कोई पता नहीं है कि वो जिंदों में है या फिर मर चुका है। बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। ये एक बड़ा हादसा पेश आया है और ये बड़ा हादसा इसलिए भी बड़ा हो गया है कि सहूलियात नाकाफी हैं। हमेशा ही ये रोना रोया जाता है अगर कोई आग भड़क उठे कि कई घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकता क्योंकि हमारे पास सहूलियात काफी नहीं होती। अगर कोई बिल्डिंग में आग भड़क उठे तो पता चलता है कि स्नार्कल मौजूद नहीं है, ऊंची बिल्डिंग है, कैसे वहां तक पहुंचा जाए। अगर कोई खुदा न खास्ता इस किस्म का हादसा पेश आता है तो हमेशा ही अलमिया ये बन जाता है कि अगर बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं तो उन्हें कैसे मुंतकिल किया जाए। एम्बुलेंसेज नहीं होती, स्ट्रेचर नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते, दवाइयां मौजूद नहीं होती। और फिर इसके साथ साथ अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त मजीद अलमनाक बन जाती है कि जब तहसील हेडक्वार्टर्स या फिर किसी छोटे नवाई इलाके में इस किस्म का हादसा पेश आए जहां पर बड़े अस्पताल भी मौजूद नहीं होते हैं और फिर सूरत हाल मजीद दगरगूं हो जाती है, हलाकतों की तादाद में इजाफा ही होता चला जाता है। और यही हमने देखा है मुख्तलिफ हादसात की सूरत में। अतर फारूक से एक दफा फिर बात करेंगे विक्टोरिया अस्पताल से मौजूद बहावलपुर से। अतर अब क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है आपको? हमें बता रहे थे भी हमारे नुमाइंदे के जो तहसील हेडक्वार्टर वहाँ पे तो सिर्फ 7 लोग हैं, ज्यादातर लोग विक्टोरिया अस्पताल ही लाए गए, तो यहाँ तो बर्डन बहुत ज्यादा है मुतासरीन का। जी बिल्कुल, बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल इस वक्त जो है ये सारे ही तकरीबन जख्मी जो है वो यही लाए गए हैं और इस वक्त ओवरलोडेड हो चुका है। तकरीबन 120 जख्मी जो है इस वक्त BVH में मौजूद हैं शोबा हादसात में और इनको मुख्तलिफ करीबी वार्ड में जो है मुंतकिल किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है इंतजामिया ने कमरों में बंद होकर किसी से भी राब्ता करने की इजाजत नहीं दी जा रही। हम कोशिश कर रहे हैं कमिश्नर बहावलपुर से, DC बहावलपुर से, MS बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से बात करने की, लेकिन आप साथ रहिएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। मलिक अहमद खान साहब, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आ गया है ये आज सुबह और वो भी इससे एक रोज पहले। पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप तक क्या खबरें आ रही हैं इस हादसे से मुतल्लिक, फिर उसके बाद आपसे मजीद बात करते हैं कि सहूलियात के हवाले से क्या सूरत हाल है। देखिए, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है और द होल नेशन इज इन ग्रीव एंड शॉक। ये सुबह उठते ही जब हम सहरी के करीब में सोया हूँ तो उस वक्त मुझे हार्डली आफ्टर लाइक 2 आवर्स टाइम किस कॉल पर पता चले इस तरह का कोई वाकया पेश आ गया लन सुबह। और ये अभी कोई 100 से ज्यादा अफराद जो हैं जख्मी बताए जा रहे हैं, 120 के करीब जाँ भाग हो चुके हैं। और ये जो वाकया पेश है वो तो ऑब्वियसली कुछ तेल की वो आग लगने की वजह से पेश है। अभी उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मंगवा ली गई है जो फिलहाल तो सानिया जो है इस पे जख्मियों की मदद और जो डेड बॉडीज हैं उनको हेल्प किया जा रहा है कि वो वहाँ पे हमारे रेस्क्यू के सारे अफराद और डिप्टी कमिश्नर की पूरी वो इंतजामिया और इर्द गिर्द के जिलों से जो वहाँ से मदद दी जा सकती है वो दी जा रही है। तो अभी इस वक्त जो डेथ टोल कंफर्म किया जा रहा है वो 120 अफराद थे और मोर देन 100 जो हैं वो इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कोई 20-25 क्रिटिकल भी हैं, ज्यादा सीरियस है। बिल्कुल मलिक साहब, आप सही कह रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग, बहुत ज्यादा ऐसी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि 80% से ज्यादा झुलस चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है खान साहब के बर्न यूनिट नहीं है अस्पतालों में। और इवन अगर विक्टोरिया अस्पताल की भी बात की जाए जहां पर तकरीबन तमाम जख्मी लाए गए हैं तो वहां से भी हमारे नुमाइंदे यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर भी नाकाफी सहूलियात हैं, एयर कंडीशंस तक नहीं वहां पर सहूलियात मौजूद हैं और इसी तरह बर्न यूनिट में भी नाकाफी इक्विपमेंट है। ये देखिए, विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है उसकी कैपेसिटी इतने बड़े इंसिडेंट के लिए जिसमें 120 से ऊपर शहादत, वो मैं आपको डेथ्स कंफर्म कर रहा हूँ और 100 प्लस जो है वो इंजर्ड हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में कोई जब जख्मी वहाँ पर पहुंचेंगे तो हॉस्पिटल के अंदर अगर काफी सहूलियात होंगी भी तो वो नाकाफी लगेंगी। और ये बात दुरुस्त है कि बर्न यूनिट वहाँ पर स्पेशलाइज्ड बर्न यूनिट नहीं है इसमें, तो अभी जो उनको वहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज दी जा सकती हैं और CMH भी साथ उनके इस वक्त हेल्प आउट कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ फैसिलिटी ऐसी है जो कि 3rd डिग्री बर्न को डील कर लेगी।
इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो लोग साहब आपकी चूंकि हमसे बात हो रही है तो आपकी नॉलेज में ये भी बात ले आए, हमारे नुमाइंदे में बता रहे हैं कि मुल्तान शिफ्ट करने के लिए या दीगर अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए भी एम्बुलेंसेज मौजूद नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई हेलीकॉप्टर सर्विस का एहतमाम हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ज्यादा जानें बचाई जा सकेंगी। यानी शिफ्ट करने के लिए भी इस वक्त मौजूद नहीं है एम्बुलेंसेज वगैरह। ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब ये नोटिस चीफ मिनिस्टर पंजाब में आया है तो उसके बाद हमने जितने अलाइड डिस्ट्रिक्ट्स नजदीक हैं जिनके ट्रेवल टाइम कम से कम हो सकते हैं, उन सबको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। बेस्ट अवेलेबल फैसिलिटीज वहाँ पर भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश एफर्ट की जा रही है। थोड़ी देर तक कंसोलिडेट हो जाएंगी चीजें। और इसमें जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा ख्याल इट इज ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स, और अगर नहीं है तो ये आपने बड़ा अच्छा निशानदेही की है, ये भी वहाँ पहुँचने चाहिए। खान साहब, जाहिर है ये बहुत बड़ा वाकया है, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई हुकूमत के ऊपर ब्लेम किया जाए, लेकिन बहरहाल सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हम देखते हैं कि बड़े अस्पतालों में तो फिर भी थोड़ी तवज्जो कर ली जाती है, लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं, छोटे शहरों के अस्पताल हैं, वो बिल्कुल नजरअंदाज हो जाते हैं। और ऐसी ही सूरत हाल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देखिए ना कि कोई वाकया होता है तो हमारी आंखें खुलती हैं, वरना हमें तो पता ही नहीं लगता कि कहाँ पर बर्न यूनिट है ही नहीं और सिरे से, और अगर है भी तो वो उसको कहना ही बर्न यूनिट में एक मजाक होता है। ये कब तक ऐसे चलेगा? देखिए, इस मौके पर मैं क्योंकि नो जस्टिफिकेशन टू गिव है, अभी इतना बड़ा हादसा है और मैंने आपको बताया कि जो क्वांटम ऑफ इसकी जो इस हादसे का जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है कि इस वक्त कोई भी जस्टिफिकेशन देना बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, और ना ही ये मुनासिब बात है कि एक तरफ इतना बड़ा हादसा पड़ा है और हम इस बहस में उलझ जाएं कि वहाँ पर क्या सहूलियात हैं। ठीक है, इतराफ है इस बात का कि वहाँ पर इस वक्त जो आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी वो नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर पूरी कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे जो जितने भी अफराद इस हादसे के अंदर मुतासिर हुए हैं उनसे फौरी तौर पर उनको मदद दी जाए और बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज उनके लिए पैदा किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अहमद खान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ मौजूद अपना मौक़िफ़ देते हुए। उनका ये कहना है कि वो एतराफ़ करते हैं कि नाकाफ़ी सहूलियात हैं इन इलाकों में, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन चीज़ों पर बाद में तफसीली बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी ये है, तरजीह ये है कि जो लोग ज़ख्मी हैं उन्हें बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। नोटिस ले लिया है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी हादसे का, और इस वाक़े से मुतल्लिक़ उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली और साथ ही साथ ये हिदायत कर दी है तमाम महकमों को, शोबों को कि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं और इस सिलसिले में जो भी वसाइल बरूए कार लाए जा सकते हैं उन्हें लाया जाए। जाबाक अफराद के लवाकीन से उन्होंने इज़हार हमदर्दी भी किया इस मौके पर, और इसके साथ साथ अब जैसा कि दुनिया न्यूज़ ने भी उनकी तवज्जो दिलाई है कि अगर हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम कर दी जाए तो शायद मजीद लोगों की जानें बचाई जा सकें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन इसलिए भी है कि जो लोग बड़ी तादाद में जख्मी हैं, जिनको फौरी तौर पर किसी बेहतर बर्न यूनिट में पहुंचना चाहिए, उनकी जो वहां तक मुमकिन है रसाई वो सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि अगर कोई हेलीकॉप्टर सर्विस वहां पर फराहम कर दी जाए, क्योंकि बाय रोड बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा और जिसमें मजीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है और इसने अभी तक 123 अफराद की जान ले ली है। रेस्क्यू जराए ये बात कंफर्म कर रहे हैं, जबकि अभी हमारे साथ तर्जमान पंजाब हुकूमत मौजूद थे, उन्होंने बताया कि 120 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 100 से ज्यादा अभी भी जख्मी हालत है और इनमें से भी बहुत सी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खवातीन भी हैं जाँ बहक अफराद में, इसके साथ साथ बच्चे भी हैं, और इसी तरह जख्मियों में भी खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद है। जो बहुत से लोग आसपास के इलाकों से यहाँ पर पहुंच गए थे ऑयल जमा करने के लिए, पेट्रोल हासिल करने के लिए, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और यकीनन आग से खेलना उनके लिए मौत का सामान बन गया। और उसके बाद अब ये लोग जाँ बहक हुए हैं बड़ी तादाद में, जिनकी तादाद 120 बताई जा रही है तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक। अतर फारूक एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अतर, अभी हमारी तर्जुमान पंजाब हुकूमत से बात हुई है, उनकी भी नोटिस में हम लेके आए हैं कि हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम की जाए। आप ये बताइए कि अभी कोई इंतजाम थोड़ा हो पाया है कि एम्बुलेंसेस के जरिए, गाड़ियों के जरिए ही इन जख्मियों को शिफ्ट किया जा सके दीगर अस्पतालों में? ये अभी तक तो ऐसा देखने में कोई ऐसा अमली इकदाम नजर नहीं आ रहा। इस वक्त भी जख्मियों की जो है आमद का सिलसिला जारी है। अभी भी 4 जख्मी जो हैं
वो ईदी के एम्बुलेंस से अहमदपुर शर्किया से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। अब तक 124 के करीब जख्मियों की तादाद है यहाँ आने वालों में शामिल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से जो शिफ्ट किए जाने थे मरीज सब यूनिट के लिए, वो अभी तक उसके फातरफा कोई ऐसे अमली तौर पर इकदाम नजर नहीं आ रहे। हालांकि यहाँ पर इनके पास सिर्फ इस वक्त जो BBH हॉस्पिटल में जो दस्तियाब एम्बुलेंसेज हैं वो तकरीबन 8 के करीब इस वक्त अवेलेबल है इनके पास जो एम्बुलेंसेज खड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद को शिफ्ट करने के लिए यकीनन एक तो इनको एम्बुलेंसेज की बड़ी तादाद चाहिए और जो उनकी कंडीशन है जख्मियों की, उसकी जान अगर बचाना जरूरी है तो उसके लिए कम से कम वक्त में उनको पहुंचाना जरूरी है और उसके लिए हेली एम्बुलेंसेज की बहुत शदीद जरूरत है। अब इस हवाले से चूंकि इनका कोऑर्डिनेशन हुकूमत पंजाब ने जो है अभी इस किस्म का यहाँ बहावलपुर में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि हेलीकॉप्टर यहाँ मंगवाया जाएगा। यहाँ पर जो इंतजामिया है, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो इस वक्त इतने बड़े वाक़ये को, इतने बड़े स्थानीय को होने पर इस वक्त बहावलपुर की इंतजामिया के भी हाथ पांव फूले हुए हैं और वो भी घबराए हुए हैं, तकरीबन कोशिश कर रहे हैं, मीडिया से अवॉइड कर रहे हैं और कमरों में बंद है और अपनी टेलीफोनिक मीटिंग में मसरूफ है। लेकिन अमली तौर पर देखा जाए इस वक्त कोऑर्डिनेशन की जो है वो शदीद नुकसान नजर आ रहा है और इस वक्त मरीजों को, इन गरीब पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो मुनासिब और मुतलका हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना बहुत जरूरी है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, एक गरीब बस्ती है अहमदपुर शर्किया की। आप उनकी माली हालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऑयल टैंकर गिरा तो किसी के हिस्से में आधा लीटर तो किसी के हिस्से में 3 पॉइंट ही आए थे। ये मुख्तलिफ बर्तनों में पेट्रोल जमा कर रहे थे। ये जो कोशिश है, ये जो उनकी छोटी सी लालच है, ये उनकी माली हालात को जो है वो उसका मंजर पेश कर रहे हैं और इसमें बच्चे, खवातीन, हर उम्र के लोग शामिल थे। और खुदा जैसे ही ये कोई आग पेट्रोल ने पकड़ी तो उसके बाद आपके सामने कि इतना बड़ा सानिया आ गया। अब चूंकि इसमें ज्यादातर गरीब लोग हैं, अब देखना ये है कि हमारी हुकूमत जो है इन गरीबों के लिए जो इस वक्त अमली तौर पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त इस साल में होने वाले जो वाकयात हैं, बहावलपुर में होने वाला ये वाकया इस वक्त सबसे बड़ा है कि जिसमें अब तक 120 से ज्यादा अमवात की तस्दीक की जा चुकी है और इस वक्त भी जो जख्मियों की सूरत हाल है वो इसमें खौफनाक हद तक मजीद भी इजाफा हो सकता है मरने वालों में। तब इतने बड़ी जानी अमवात का होना और वो भी महज ईद से एक दिन पहले होना, रोजे की हालत में भी कुछ लोग थे तो कुछ ईद की तैयारियों में मसरूफ थे। आप जरा सोचिए उन लोगों के घरों पे इस वक्त उनके हालात पर, उनकी जिंदगी पर क्या असरात आए कि इस वक्त दुनिया के दूसरे लोग जो है ईद की खरीदारी और ईद की खुशियां मनाने के जहां उसमें मसरूफ है और इस वक्त खरीदारी की जा रही है, तो बहावलपुर की इस गरीब बस्ती के लोगों के घर सबसे मातम बिछा हुआ है। यहाँ के बच्चे, यहाँ की खवातीन, यहाँ के जो अफराद हैं, तकरीबन 100 के करीब अफराद की जिंदगी को अभी भी शदीद खतरा लाहक है और उनको जो है इस वक्त प्रॉपर बर्थ यूनिट दस्तयाब नहीं है और इसके लिए अभी तक जिले इंतजामिया की तरफ से हमें अमली तौर पर कोई ऐसा इकदाम देखने में नहीं आ रहा कि जिस पे हम तसल्ली कर सके कि इन गरीबों की जान को बचाया जाएगा। जी बिल्कुल अतर, आप सही कह रहे हैं कि यकीनन इस बस्ती में सफ़े मातम मिट चुका है, लेकिन ऐसा कोई सामना, ऐसा कोई हादसा पेश आता है, ऐसा कोई अलमिया रूनुमा होता है तो यकीनन पूरी कौम ही उसमें साथ होती है और हर कोई ये दर्द महसूस करता है। एक उदासी की कैफियत हमें हर एक के चेहरे पर नजर आती है। तो अफसोसनाक सूरत हाल, 123 अफराद ऑलरेडी जाँ बहक हो चुके हैं और मजीद भी हलाकतें बढ़ सकती हैं जिस तरह से आप सूरत हाल बता रहे हैं कि लोग जख्मी हुए हैं और इसके साथ साथ ये भी कि अब उन्हें इलाज मुआवजे की भी बेहतर सहूलियात फराहम नहीं जिस तरह से हो रही। अतर ये भी बताइए कि आप अस्पताल में मनाजिर क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये भी जाहिर है बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है, आपको क्या नजर आ रहा है कि एक एक बेड पर कितने कितने लोग मौजूद हैं, डॉक्टर्स की तादाद कितनी है जो उन्हें इस वक्त ट्रीट कर रही है और क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? जब उनके पास बर्न यूनिट ही नहीं है प्रॉपर तो वो क्या उन्हें ट्रीट कर रहे हैं? जी इस वक्त BBH हॉस्पिटल में क़यामत सुगरा का मंजर है और जिले इंतजामिया और हॉस्पिटल की इंतजामिया यकीनन अपनी इस नाअहली को और अपनी कमियों को छुपाने के लिए ही उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर मीडिया के दाखिले को बैन किया हुआ है ताकि हम ये ना दिखा सके अपने नाजरीन को। वैसे भी यहाँ इतने दिलखराश मनाजिर हैं कि जो हमने शूट किए हैं तो वो इस पोजीशन पे नहीं है कि जो हमारे SOPs हैं, पैमरा रूल्स हैं, उसके मुताबिक वो पूरे नहीं उतरते कि इतनी खौफनाक हालत में जख्मी यहाँ लाए गए हैं। हम वो चाहते हुए भी अपने नाजरीन को नहीं दिखा सकते। हाँ, अल्फाज से मंजर कशी जरूर कर सकते हैं कि उनकी सिर्फ सांसें चल रही हैं
बाकी अल्लाह माफ करे, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक इंसान 70 से 80% जल चुका हो तो उस वक्त उसकी क्या कंडीशन होती है। अब इस सूरत हाल को हम नाजरीन को तो नहीं दिखा सकते, बयान जरूर कर सकते हैं। BVH हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 15 से 20 के करीब जो डॉक्टर हैं इस वक्त शोबा हादसात में इस वक्त तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ है। इसके अलावा जो मेडिकल और सर्जिकल वार्ड में जो जख्मियों को लाया जा रहा है तो ओवरऑल 20 से 25 डॉक्टर का स्टाफ है जो इस वक्त इन सारे जख्मियों को देख रहा है। और इस वक्त यकीनन ये मनाजिर है कि जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि सिर तक जहां जिस हॉस्पिटल में दस्तयाब ना हो, जब एक मरीज को गोद में या कपड़े की चादर में लपेट कर शिफ्ट किया जा रहा हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में जब उसको मरहम पट्टी की जा रही है, यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर उनको कोई खास ऐसी मेडिसिन नहीं दी जा रही। जो बंदा झुलस जाता है उसको एक फर्स्ट एड के तौर पर एक क्रीम लगाई जाती है, बर्नोल टाइप एक मेडिसिन होती है जो इसको इन्फेक्शन से बचाती है। यहाँ जितने भी जख्मी लाए गए हैं सिर्फ उनको वो क्रीम लगाई जा रही है उनके जख्मों पर और उसके बाद उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और एक एक बेड पर इस वक्त 4, 5 और 6 के करीब भी लोग बच्चे जो है वो है और अफरा तफरी का आलम है। इस वक्त बेड्स की कमी है, 1600 बेड का ये हॉस्पिटल है, लेकिन इस हॉस्पिटल में रूटीन में भी 2500 से 3000 के करीब पेशेंट पर डे आते हैं। तो ये आम हालात में भी ओवरलोडेड हॉस्पिटल होता है। तो जब इस वक्त इतने बड़ी तादाद जख्मियों की और इतना बड़ा मौक जो एक हादसा की सूरत में जब एक पब्लिक का आया है तो यकीनन इस वक्त हॉस्पिटल की इंतजामिया के साथ साथ हमारी जिले इंतजामिया भी कंफ्यूज है, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस में भी इतना बड़ा वाकया पहले कभी नहीं आया था। और यही वजह हम देख रहे हैं कि हमारा कमिश्नर जो है वो हमें अवॉइड कर रहा है, हमसे छुप रहा है, हमारा DC हमसे भाग रहा है, हमसे छुप रहा है। हालांकि ऐसा कोई वाकया नहीं है, ये एक ऐसा सानिया है कि इसमें हम सब जो है इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। हम मिलकर इनके लिए बेहतर हिकमत अमली तय कर सकते हैं। जो चीजें हम आपको अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि इस वक्त फिलफौर इनको बर्न यूनिट की जरूरत है, इनको मेडिसिन की जरूरत है, ये अगर मीडिया के साथ भी कोऑर्डिनेशन करते तो यकीनन ये मशवरा हम उनको उन्हीं की फेवर में देते। लेकिन इस वक्त इंतजामिया जो है उन्होंने अपने सेल फोन बंद किए हुए हैं और मखसूस एक नेटवर्क है जिससे वो अपने इंतजामिया के साथ राब्ते में है। और BVH के बाहर जो है मीडिया को रोका गया है, इस वक्त अंदर जो है पिक्चराइज करने की इजाजत नहीं दी जा रही। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इनके पास एक तो स्टाफ थोड़ा है, सेकेंडली इनके पास वो सहूलियात नहीं है और ये नहीं चाहते कि वो मनाजिर या वो चीजें दिखाई जा सकें कि किस तरह से कम वसाइल में अफरा तफरी में ये लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बहरहाल ये क़यामत सुगरा का मंजर है कि ये ईद उल फितर जो है सदियों अहलियान बहावलपुर को याद रहेगी कि चांद रात महज एक दिन पहले ईद से पहले यहाँ इतनी बड़ी अमवात का होना, इसमें यकीनन बहावलपुर जिले की जो फिजा है सोगवार हो चुकी है। हर शहरी परेशान है, गम से नढाल है और सारे के सारे इस वक्त शहरों की बड़ी तादाद, खवातीन की बड़ी तादाद हॉस्पिटल का रुख कर रही है।